This is you like sample paper number 1, but this is an old sample paper, that is why it is of 90 marks. Otherwise, now in 2021 we will be taking up a theory paper of 80 marks. Fine. But the questions are kind of similar, so we can revise from here also. Now, question number 1, Akshay, you will be answering. State what is the end product of financial accounting. हमारा जो financial accounting है, उसके लास्ट में हमें क्या मिलता है, उसका क्या एंड प्रोडक्ट है. यस अक्षय. अक्षय. यस मैम. यस आंसर दो. इसका आंसर स्क्रीन पर भी है, आप दे सकते हैं बहुत इजीली. क्वेश्चन नंबर 1. बैलेंस शीट. बैलेंस शीट, राइट. वी गेट बैलेंस शीट in the end. Yes. And what else? Profit and loss statement. Profit and loss account. Okay, very good. That is why we call them final accounts. हम इनको क्या बोलते हैं हमेशा? फाइनल अकाउंट्स. जो फाइनली बनाए जाते हैं, सबसे लास्ट में बनाए जाते हैं. जैसे आपके जो सबसे लास्ट वाले एग्जाम होते हैं, हम उन्हें बोलते हैं फाइनल एग्जाम. इसी तरह हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है, उसका एंड प्रोडक्ट, लास्ट वाला प्रोडक्ट क्या है? हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट. राइट. ओके, गुड. Now question number 2, Aviral, be ready. When should revenue be recognized? हम revenue को कब recognize करते हैं? It is according to the accounting principle, revenue recognition principle. Yes. Aviral, Aviral, you need to answer this question. When should revenue be recognized? Aviral, are you there? Devansh, question number 2. Devansh, you need to answer question number 2. When should revenue be recognized? I will be giving you marks on this basis only, so you need to answer, all of you. Ma'am. Devansh this side. Yes, beta, yes. Ma'am, revenue should be recognized when either the amount has been received कर चुके हैं और an obligation होता है कि हमारे को receive करना है. अभी establish हो जाता है हमारे पे obligation to receive. Okay, right. So either we have received the amount in our hand or obligation has been made. ठीक है, या तो हमारे पास कैश या बैंक के थ्रू पैसा आ चुका है, या हमने लीगली हमने उसको बना लिया है कि हमारे पास वो मनी आ जाएगी. एट दैट टाइम हम अपनी बुक्स में एंट्री कर लेते हैं कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया. राइट, गुड. Question number 3, why are the rules of debit and credit same for both liability and capital? लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए जो हमारे अकाउंटिंग जो हमारे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैं, वो सेम क्यों हैं? ध्रुव. Ma'am, according to business entity concept, capital, business and owner are two different identities. Are you able to hear me? Yeah, I'm able to hear you, but your answer is a little bit. हाँ बताओ, और बताओ आंसर को थोड़ा आगे बताओ. According to business entity concept, business and owner are two different identities. So in this case, capital is also considered as a liability from business point of view. So rules of debit and credit are same for both liability and capital. Okay, very good. Because capital is an internal liability of the business. ओनर और बिजनेस को हम अकाउंटिंग व्यू पॉइंट से अलग अलग मानते हैं, इसलिए जो मनी ओनर ने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में, वो भी बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है. दैट इज व्हाई एक्सटर्नल लाइबिलिटी और कैपिटल जो है इंटरनल लाइबिलिटी, दोनों के रूल्स सेम रहेंगे. राइट. इस क्वेश्चन में किसी स्टूडेंट को क्लैरिटी नहीं है तो पूछ लें. क्वेश्चन नंबर 3, why are the rules of debit and credit same for both liability and capital? अगर क्लैरिटी नहीं है तो पूछ लें. Is it clear to everyone?
Rules of debit and credit, why they are same for liability and capital? लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए हमेशा रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सेम होते हैं। कब वो डेबिट होंगे? अगर कैपिटल और लाइबिलिटी इंक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, और डिक्रीज होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, Harsh Agrawal, you will be answering. Okay, be ready. Question number 4 is briefly state how the cash book is both a journal and a ledger. कैश बुक कैसे जर्नल भी है और लेजर भी है? हर्ष अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 4। हर्ष गुलाटी, your voice is not coming, beta. Himanshi, question number 4। Himanshi, question number 4। Kashish, My voice is coming. yes, Harsh Gulati. Now you are audible. Yes, give the answer. Cash book is a ledger for cash account and bank account when it is a journal for which it need to be recorded in a ledger. हम समझ नहीं आया वैसे ये मेरे को, समझ नहीं आया? मतलब थोड़ा Okay. बहुत तो हो गया। Okay, anyhow, let me ask अभी, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी उसमें और क्लैरिटी लेते हैं। मैं आई शुड आस्क सम अदर स्टूडेंट्स आल्सो, लेट अस सी इफ एनीवन is clear about it or not. Dhruv, can you give some clarity on this question number 4? Ma'am, and when we are preparing cash books, so we do not have to make ledger accounts of cash and bank as it is, मैम वो उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाता है लेजर अकाउंट कैश बुक Right, में। right. फॉर अदर्स अकाउंट दैट इज सेल्स एंड परचेजेज वी आर मेकिंग जर्नल अकाउंट। Yes, Dhruv, please speak again, beta. Till that point, I am clear that you were saying that we make the cash book and that itself is a ledger, right? What else you said? And for others account that is sales purchases and other accounts we are making journal of that account, that is sales account to cash account to sales account and etc. Okay, very good. So it is what the question is saying. Now listen carefully, Harsh beta and other students. Question is asking कि कैश बुक कैसे लेजर भी है और जर्नल भी है, ठीक है? जर्नल हमारा क्या होता है? जर्नल इज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ऑफ द प्राइम एंट्री। हम वहां पर पहले जर्नल एंट्रीज पोस्ट करते हैं और जर्नल एंट्री से हम लेजर बना लेते हैं। पर कैश बुक के केस में, सब्सिडरी बुक्स के केस में, हम जो एंट्री है वो सीधा कैश बुक में बनाते हैं, और कैश बुक का फॉर्मेट कैसा होता है? हमारा अकाउंट के फॉर्म में होता है, लेजर के फॉर्म में होता है, राइट? इसलिए वो एक लेजर का भी काम करता है और जर्नल का भी काम करता है, क्योंकि हम कैश बुक में से ही वो सारी एंट्रीज दूसरे अकाउंट में पोस्ट करते हैं। नाउ क्लियर? Now question number 5. Question number 5 is give 2 examples of contra entries. Contra entries हम किसे बोलते हैं? This is again a question from the cash book. Cash book से आ रहा है ये question. And Himanshi, you didn't answer. Kashish didn't answer. Manya, question number 5. Give 2 examples of contra entries. Ma'am, contra entries are those where there is entry in cash column and bank column. Right.
depositing cash in the bank. In the debit side of cash book, in cash column we will add in the debit side we will write to bank account and the amount, and and in the bank, On the payment no, side, credit side. in the bank side we will debit, and in credit side we will in debit side we will write to cash account, and in the By, bank column we by will cash write the amount. account. By cash account. Right. So you want to say that depositing cash into the bank, what will be the journal entry for this depositing cash in the bank? Bank account debit to cash account. Bank account debited to cash account. Okay, this was one example. Second example बताइए. Withdrawing cash from the bank. Okay, what will be the general entry here? Withdrawing cash from the bank. Cash account debit to bank account. Cash account debited to bank account. Okay, very good. Very good. Now coming to question number 6. This is related to computers. We are not doing this. Now coming to question number 7. Explain any three. Just a minute. Explain any three qualitative characteristics of accounting information. Yes, this answer will be given by Ujasvi. Ujasvi, question number 7. Accounting information के क्या क्या मैम qualitative characters हैं? Yes, yes. मैम Ujasvi. डिपॉजिटेड कैश इन बैंक की एंट्री मैम बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट होगी। हाँ, deposited cash into the bank. Bank is increasing. That is why we will write bank account debited, and cash is decreasing. So to cash account, cash will be credited. Asset हैं दोनों, दोनों asset हैं. एक asset increase हो रहा है, जो asset increase होगा वो debit हो जाएगा. Bank increase हो रहा है, तो bank debit हो गया. Cash भी asset है, पर cash business से बाहर जा रहा है, बैंक में जा रहा है. तो cash decrease हो रहा है, cash decrease हो रहा है, तो वो credit हो जाएगा. Right? Now question number 7, Ujasvi, Pranav, question number 7. See, answers are there on the screen. It is just your lack of confidence that you don't want to speak in the class. But if you will speak in the class, you will get confidence that we know the answer. Satvik, Yes, ma'am. yes, question number 7, beta. Ma'am, understandability. An accounting information should be readable, understandable by different users. मैम मतलब वो जैसे हम जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं वो सबसे अंडरस्टैंड होनी चाहिए, मतलब वो सबको सबको समझ समझ में में आ आए। जानी चाहिए. ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है. अगर आप सीए हैं और या आप अकाउंटेंट हैं और आप वो अकाउंट्स बना रहे हैं तो दूसरे अकाउंटेंट को भी वो अकाउंट समझ में आ जाए. ओके, गुड. यस, सेकंड पॉइंट. रिलेवेंस, इट शुड बी रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग. वो मतलब रिलेवेंट होनी चाहिए जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. थर्ड, इट शुड बी रिलायबल. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं इट शुड बी सेंस रिलायबल इन द सेंस फ्री फ्रॉम एरर. रिलायबल वर्ड का क्या मतलब है, ये बताएं. कि मैं उस पर ट्रस्ट कर पाऊँ, मुझे वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक लगे. ठीक है ना, रिलायबल हो वो इंफॉर्मेशन. ठीक है, ओके, गुड गुड सात्विक. देन कंपेरेबिलिटी. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो कंपेयर करी जा सके. ऐसा नहीं हम बार बार मेथड चेंज करते रहें और वो कंपेयर ना की जाए या हम अपने रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो ना करें. सो ये उसकी क्वालिटी होनी चाहिए. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की क्वालिटेटिव फीचर्स हैं. अंडरस्टैंडेबिलिटी, they must be easily understandable, relevant,
for decision making. It must be available in time so that we can make a timely decision. It should be reliable, जिसके ऊपर हम trust कर सकें, भरोसा कर सकें. It should be comparable. हम कंपेयर कर सकें अपने करंट प्रॉफिट्स को अपने लास्ट ईयर के प्रॉफिट से, या हम इंटरफर्म कंपैरिजन कर सकें, ठीक है, या इंट्राफर्म कंपैरिजन कर सकें अपने अकाउंट्स का. सो इट शुड बी reliable. Now coming to question number 8. Question number 8 is explain any 3 types of errors with suitable examples. This question is coming from the chapter rectification of errors, right? Rectification of errors से ये question आ रहा है. Subhanshi, can you explain this question number 8? Subhanshi, question number 8 बताइए. मैम एरर ऑफ ओमिशन, जब ट्रांजैक्शन कोई भी ओमिटेड होती है, मतलब पूरी या फिर पार्टली अकाउंट्स की बुक्स में, तो एरर ऑफ ओमिशन अराइज होता है. एग्जांपल, हमने परचेज किया है क्रेडिट में, तो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो, लेकिन ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन के केस में जो क्रेडिट परचेज है वो परचेज बुक में ऑलरेडी पोस्टेड होगी, क्रेडिट होगा क्रेडिटर अकाउंट. और पार्शियल ओमिशन के केस में एरर ऑफ कमीशन, when any transaction is incorrectly recorded either wholly or partly, error of commission arises. जब कोई ट्रांजैक्शन गलत बुक में रिकॉर्ड होती है तो एरर ऑफ कमीशन अराइज होता है. ये इनकरेक्ट पोस्टिंग, कैलकुलेशन और बैलेंसिंग, इनमें से किसी भी चीज की वजह से हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल कि हमने 675 की क्रेडिट परचेज एंटर करी है परचेज बुक में, नहीं, हमने 675 की क्रेडिट परचेज करी है, लेकिन बुक परचेज बुक में 576 की एंटर करी है, मतलब हमने एरर ऑफ कमीशन हुआ है. और 2000 की पोस्टिंग करी है रामू की बुक में मनीष की बुक की जगह. Error of principal is committed when a transaction is recorded in fundamentally incorrectly manner. Such error involve an incorrect allocation of expenditure or receipt between capital and revenue. Error of principal में जब होते हैं ट्रांजेक्शन गलत तरीके से रिकॉर्ड हो जाते हैं बुक में, और ऐसे एरर इन्वॉल्व करते हैं इनकरेक्ट एलोकेशन एक्सपेंडिचर का या फिर रिसिप्ट का, जो कैपिटल और रेवेन्यू के बीच में होता है. फॉर एग्जाम्पल, फ्रेट पेड, हमने नई मशीनरी के लिए फ्रेट पे किया है और वो फ्रेट अकाउंट में पोस्ट किया है, और एसेट परचेज करी है वो परचेज में रिपोर्ट करी है. Okay, good. Good, Subhanshi. You have explained it very nicely. Error of omission, जब हम वहाँ पर कुछ लिखना भूल गए हैं, it can be हम सारा लिखना भी भूल सकते हैं और हम आधा लिख दिया आधा नहीं लिखा, ऐसा भी कर सकते हैं. Error of commission, जब हम ट्रांजेक्शन को एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम हमने उसको गलत एंटर कर दिया. देन एरर ऑफ प्रिंसिपल, हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो नहीं करा, हमने रेवेन्यू नेचर के आइटम को हमने कैपिटल समझ लिया. और कॉम्पनसेटिंग एरर है जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर देते हैं, और इन एरर्स को ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि टोटल सेम आता है ट्रायल बैलेंस का कॉम्पनसेटिंग एरर के केस में. Dhruv is asking a question from me. Dhruv is asking a question, मैम compensating error and commission error में difference क्या है? सी, कमीशन एरर में क्या है कि हमने जब हमने ट्रांजैक्शन एंटर करी, रिकॉर्ड करी, तब हमने मिस्टेक कर दी, पर वो मिस्टेक से हमारा ट्रायल बैलेंस का जो टोटल है वो अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम उसको बहुत इजीली ट्रैक कर सकते हैं. पर कॉम्पनसेटिंग एरर क्या है, जो एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं और उसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट जो है वो काउंटर बैलेंस हो रहे हैं, और इस वजह से ट्रायल बैलेंस का टोटल सेम आ रहा है, और उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर. और उसकी वजह से हम इजीली पता नहीं लगा पाते कि कोई मिस्टेक हुई है. राइट, इज इट क्लियर नाउ? कॉम्पनसेटिंग एरर भी एक टाइप का एरर ऑफ कमीशन ही है, बस उसमें ट्रायल बैलेंस का टोटल इक्वल आ जाता है. सो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रैक दी एरर, हम उस एरर को पता नहीं लगा पाते.
Okay, ma'am. Now coming to question number 9. Question number इन 9 दोनों है में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो सकता है ना? सस्पेंस अकाउंट क्या हो सकता है, ओपन करा जाए या नहीं करा जाए, या वो मिस्टेक पता लगती है या नहीं लगती है। देखो, अगर कोई एक अकाउंट बना रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि वो अकाउंट सिर्फ एक ही पर्सन ने बना दिया और उसके बाद वो मिस्टेक आगे जाए जा रही है। उसके बाद जैसे हम होता है ना, हम अपने आंसर शीट स्टूडेंट्स की चेक कर रहे हैं और बाय चांस हमसे कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसके बाद एक रीचेकर भी होता है उस आंसर शीट के लिए, तो वो मिस्टेक वहां पर ट्रैक हो जाती है। तो इसी तरह जब हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं तो वो अकाउंट्स जो हैं वो आगे भी उस चेक होते हैं दूसरे अकाउंटेंट के थ्रू, तो उसमें हम उस मिस्टेक को देख सकते हैं या कभी हम भी दोबारा उसको देख सकते हैं। Now coming to question number 9. Question number 9 is related to your journal. Journalize the transactions in a journal. Question number 1 is withdrew goods for personal use. पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स निकाले हैं, कॉस्ट इज 20,000, IGST 12% ऑन दैट एंड सेल प्राइस इज 30,000. आई नीड टू आस्क इट फ्रॉम Subhanshi. After Subhanshi, I have Tanishka. Yes, Tanishka, give me answer for this. Question number 9 का आंसर दो. Tanishka. Vansh. Vansh, question number 9. यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है। आंसर में मिस्टेक ये है कि क्वेश्चन में IGST दिया हुआ है 12% और आंसर में CGST और SGST दिया हुआ है। So it will be to input IGST 12%, तो अमाउंट भी चेंज हो जाएगा इसमें। Anyhow, you give your answer. आप अपना आंसर दें। Vansh, are you there? Vanshika. Viraj, question number 9. विराज, यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 बताइए बेटा। मैम क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट में जो प्रोवाइडर है उसने गुड्स लिए हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो हमारी ड्राइंग्स हो गई। जो कॉस्ट थी वो थी 20,000, उसके ऊपर IGST 12% लगा है। मैम उसका जो सेल प्राइस था वो 30,000 था। उसकी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट टू IGST अकाउंट, इनपुट IGST अकाउंट, राइट। अमाउंट क्या रहेगा? विराज अमाउंट बताइए। परचेजेस में 20,000 जाएगा और इनपुट IGST में जाएगा 12%। 12% मीन्स 2400 और हमारा ड्राइंग्स में जाएगा 22,400. ओके ओके, गुड विराज, गुड. नाउ सेकेंड, विशाखा, बी रेडी. Second is donation given to an NGO rupees 30,000 through check. हमने डोनेशन दी है चेक से. What will be the journal entry? Vishakha. Vishakha has typed in the chat box, donation account debited to bank account 30,000 rupees. Okay, good. Vishakha, good. Now third entry, Akshay. Akshay, you didn't answer in the first round as well. अब आंसर दे दो इसका. Purchased machinery rupees 60,000 subject to levy of IGST 12%, CGST and SGST at 6% each,
फ्रॉम अनदर स्टेट ऑन क्रेडिट। उसने दोनों चीज़ें लिख के दी हैं कि IGST 12% होगा और CGST और SGST 6% होगा। वो स्टूडेंट को पता लगाना है कि इसमें IGST आएगा या CGST SGST आएगा। उन्होंने सिर्फ ये लिख कर दे दिया फ्रॉम अनदर स्टेट ऑन क्रेडिट। अनदर स्टेट ऑन क्रेडिट मतलब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है। इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन में क्या लगता है हमारा, IGST वाला लगता है या SGST CGST वाला लगता है। Akshay has left the meeting when question was asked from him. Anyhow, Aviral थर्ड एंट्री बताइए। देखो आंसर स्क्रीन पर है, बताना ऐसा कोई भी डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको बता दो आंसर को सिंपली। अविरल, चाहत, say I'm writing the names of these students and I will be talking to the parents that they are not answering in the class. Devansh, third entry. Okay, Vishakha, right answer beta. Devansh, third entry बताओ। ध्रुव, यस मैम। यस देवांश, थर्ड एंट्री एक्सप्लेन करिए। मैम हमने मशीनरी खरीदी है 60,000 की, राइट। IGST 12%, CGST एंड SGST उसके अंदर 6% है, इसलिए मिला के IGST 12% बना है उसमें। मैम मशीनरी अकाउंट डेबिट होएगा 60,000 से और जो उसका इनपुट IGST आएगा टोटल वो हमारा 7,200 आएगा। और मैम सप्लायर को 67,200 रुपीज देंगे इंक्लूडिंग IGST। Okay, fine. Machinery is an asset. It is increasing in the business, so we have debited it. Asset है, increase हो रहा है, debit कर दिया 60,000 से। Input IGST है, ठीक है, वो भी हमारी asset है, हमने उसे debit कर दिया 7,200 वो आया। सप्लायर हमारा क्रेडिटर है, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने 67,200 हमें मशीनरी के सप्लायर को पे करने हैं फ्यूचर में। लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, लाइबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो वो क्रेडिट होती हैं। सो वी हैव रिटन टू सप्लायर अकाउंट 67,200। ओके, वेरी गुड देवांश। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज distinguish between provisions and reserves on the following basis. Provisions and reserves, we know that this is a theory chapter and it is a very small chapter, so such type of questions can come from provisions and reserves, right? And I'm not saying that it will come, but generally the students ask me this question, ma'am ये chapter करना है नहीं करना है, skip कर दें। So you need to do this question. Theory is equally important in accountancy because you need to be clear with your concepts. Now, difference between provisions and reserves. Dhruv, can you explain the difference between provisions and reserves? First point, that is basic nature. Provision, it is charged against profit, and reserve, it is an appropriation for profit. इसका मतलब क्या है? It will be used in your 12th class, this concept, charge against profit and appropriation of profit. मतलब है प्रोविजन मीन्स हमें ये पे करना ही हमारे ऊपर बर्डन है, लाइक सैलरी, वेजेस एटसेट्रा। एंड रिजर्व्स, इट इज एन एप्रोप्रिएशन, लाइक एग्जांपल पे करना ही करना नहीं। ये अब मैं बना रही हूँ अगर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, तो मुझे तो किसी आउटसाइडर को नहीं पे करना है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन कैश एक्सपेंस होता है जो हम एक्सपेंस की तरह बुक्स में लिख रहे हैं पर वो कैश कहीं भी बाहर नहीं जा रहा है। इसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसलिए बोला जाता है कि हमने वो प्रॉफिट, उससे प्रॉफिट कम होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में।
वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है कि वो प्रॉफिट हमने एप्रोप्रिएट कर दिया, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी ही सैलरी को डिवाइड कर दिया कि इसमें से इतना मुझे ट्रैवलिंग के लिए चाहिए, इतना मुझे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए चाहिए, या और इतना मैंने सेविंग के लिए अलग कर दिया, तो वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अपने ही प्रॉफिट को अलग अलग चीज़ों में रख देना, अलग अलग बॉक्सेस में रख देना, पर वो है मेरे पास ही। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है जिससे मेरा प्रॉफिट कम हो जाए, राइट? ओके, ठीक है, सेकेंड पॉइंट बताओ। ध्रुव, सेकेंड पॉइंट बताओ। And purpose provision, it is a liability against financial accounting period. जो लाइबिलिटी हमें पता है, नोन लाइबिलिटी की, वो फ्यूचर में आएगी। जैसे कि हमें पता है कि मशीन की वैल्यू कम होगी, डिप्रिसिएशन होगा ही होगा, या हमें पता है कि हमें टैक्स पे करना ही करना है फ्यूचर में, पर हमें उसका एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, तो हम उसके लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और रिजर्व है कि हमने अपनी सेविंग के पैसों को अलग कर करके रखे जा रहे हैं, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसी अननोन अनसर्टेनिटी आ जाए तो हम उसको बेयर कर सकें, हमारे पास मनी हो, हम पहले से ही पैसे को अलग करते जाते हैं। जैसे हम पहले की लेडीज इसको ज़्यादा करते थे कि हाँ ठीक है, सेविंग ज़रूर करनी चाहिए, पैसा अलग करके रखना चाहिए, पता नहीं तो फ्यूचर में किस चीज़ के लिए काम आ जाए। तो दे काइंड ऑफ कीप स्कोल्डिंग द न्यू जनरेशन पीपल की ज़रा भी पैसा सेव करके नहीं रखते हैं जो किसी के काम आ जाए। काइंड ऑफ दैट थिंग इज देयर। Now third is effect on taxable profits. It reduces taxable profits. It has no effect on taxable profit. अगर हम प्रोविजन बना रहे हैं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, हम प्रोविजन के डेबिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख रहे हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को भी वहां पर लिख रहे हैं, तो करते करते हमारा प्रॉफिट कम आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कम प्रॉफिट शो करेगा, और जितना कम प्रॉफिट शो करेगा उतना कम हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो वो हमारे टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर देता है। पर रिजर्व जो है, रिजर्व को हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में नहीं लिखते, उसके लिए हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं अलग से, कि ये मनी इसका, ये मनी इसका। So it has no effect on taxable profit. Now presentations in balance sheet, it is shown either by way of deduction from the item on the asset side for which it is created, या तो हम मशीनरी में से उसका डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दें, असेट में से उसका डिप्रिसिएशन माइनस करके दिखा दें, या फिर हम उसको लाइबिलिटीज में लिख दें, बात उसकी एक ही आएगी। और रिजर्व्स हैं, इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड आफ्टर कैपिटल अमाउंट, कैपिटल में हम जनरल रिजर्व और ये सब ऐड कर देते हैं। एलिमेंट ऑफ कंपल्शन, क्रिएशन ऑफ प्रोविजन इज नेसेसरी टू ascertain true and fair profit or loss in compliance, prudence or conservative concept, it must be made even if there are no profits। ठीक है, हमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट हमेशा हमारा क्या कहता है, एंटिसिपेट all the losses and expenses, do not anticipate any profit or gains, but provide for all losses and expenses, ठीक है, all probable losses and expenses। So हमें इसको इसलिए क्रिएट करना होता है। और रिजर्व्स हैं, जनरली क्रिएशन ऑफ अ रिजर्व इज एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैनेजमेंट, रिजर्व कैन नॉट बी क्रिएटेड अनलेस देयर आर प्रॉफिट्स। जनरल रिजर्व या कोई भी रिजर्व क्रिएट करने की मैनेजमेंट की अपनी डिसीजन है, पर रिजर्व हम तभी क्रिएट